Hi, good morning to all of you. Now we will study the translation. What is translation? Translation, that means protein synthesis. Protein synthesis is called a translation. First of all, in translation, protein synthesized by mRNA. mRNA for messenger RNA is useful to protein synthesis, but actual not only mRNA are useful in protein synthesis, but even tRNA is useful. Now, rRNA is also useful in this translation, and the factory of translation is called a ribosome. Ribosome is the factory for translation, and it is also factory of protein. Now, first of all, many students have the information about that how this ribosome are making protein, how this all peptide bond are synthesized, but they have no information about ribosome, that how many subunits are in ribosome. It is very a huge topic, ribosome, but I will give some basic information about ribosome, that in prokaryotic cell and in eukaryotic cell. This is the eukaryotic cell and it is prokaryotic cell. Now, ribosome, there are two type of ribosome. First one is 70 as ribosome. S for Swedberg unit. S for Swedberg unit. In many reference book, you will found that it is density unit, density gradient unit. And ribosome is 70s type. Ribosome actual made up of two subunit. This one is smaller and it is larger. Now this smaller is made up of 30s and larger is made up of 50s, but it is in prokaryotic. यहाँ पे मैंने नीचे U ड्रॉ किया है, राइट? तो नीचे U का लिखते हैं, ऊपर प्रो का लिखते हैं, तो प्रो में 70s है और यहाँ पे राइबोसोम है, स्मॉलर सब यूनिट में 30s और लार्जर में 50s. Now, what is the difference between prokaryotic and eukaryotic ribosome? In eukaryotic, there are 80s. It is eukaryotic cell. And in prokaryotic cell, it is 70s. In eukaryotic cell, Millie, you can see, Danya, that in eukaryotic cell, the pad of 60 and 40. Now little confusion you have, that how this 50 plus 30 will become 70. इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे टोटल नहीं करना है, आपको टोटल नहीं करना है कि भाई यहाँ पे 70s है तो इसका तो 40-30 होगा, 50-30 थोड़ी होगा, ऐसे टोटल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस से बाइफर्गेशन किया, तब ये जो लार्जर सब यूनिट था उसका यूनिट यहाँ 50 स्वेटबैन है, इसका 1 ग्राम वेट है और इसका 10 ग्राम है. तो अगर यहाँ पे आप दोनों को मिक्स करो तो 9 प्लस 10 या फिर 9 प्लस 1 यानी 10, ऐसा यहाँ नहीं हुआ. यहाँ टोटल का वेट थोड़ा कम हुआ, टोटल का फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन यहाँ पे टोटल ये 30 50 ऐसे 80 नहीं करना है, यहाँ पे भी 60 40 100 नहीं करना है, यहाँ पे 80 ऐसे, राइट? यहाँ थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 70s यानी प्रोकैरियोटिक. Even if eukaryotic cell, cytoplasm ribosome have 80s, but in eukaryotic there are some organelle
It is nucleus. But there are some organelle like a mitochondria. Like a mitochondria. This is mitochondria, right? And in mitochondria is 70S type. This is the chloroplast. You can see in this figure, this is chloroplast. And in chloroplast, it is also 70S. So, these both are the exception that in prokaryotic cell, all ribosome are made up of 70S. But in you, there are two exceptions in mitochondria and chloroplast. In these both organelle, the ribosome are of the 70S. Now, this is about ribosome. This is the factory, right? And first, just a point that in prokaryotic cell, the part of ribosome is one of the part of ribosome is 23S, and this 23S यानी ये 50-30 70 का पार्ट कौन सा हुआ 50-30 अब 50-30 का भी एक पार्ट है वो 23S है S फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और ये 23S है इट इज एक्ट एज अ एंजाइम and it is act as an enzyme, so it is called a ribosome because enzyme of ribosome, so it is called a ribosome. It is the accelerator. It is act as a, आपको दिखाई नहीं देगा, it is act as a accelerator of this process but in prokaryotic cell. याद रखो सो क्या बोलेंगे राइबोसोम या यूट्यूब के चैनल में यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ इट इज कॉल्ड राइबोजाइम सॉरी राइबोजाइम याद रखो राइबोजाइम नाउ this is your ribosome and about basic information. Now in translation एक क्वेश्चन को ट्विस्ट करके अलग अलग व्यू से पूछ सकते हैं कि भाई प्रोटीन सिंथेसाइज राइट शॉर्ट नोट अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस या फिर राइट अबाउट इंफॉर्मेशन द फंक्शन ऑफ राइबोसोम ऐसे भी पूछ सकते हैं. अब मैं यहाँ का लाइट चालू करूंगा क्योंकि अब आपको यहाँ देखने में कोई इश्यू नहीं होगा बराबर दिखाई देगा क्योंकि मुझे यहाँ ड्रॉ करना है टोटली. नाउ translation, this is the reaction which is this is the process. इसको process बोलेंगे biochemical process बोल सकते हैं right. This is the process in which 3 steps you will found. First one is called initiation. याद रखो this is the initiation. This is the first step याद रखो. Second step is called elongation. And third step is I am writing here. Third step is called termination. फिर से दिखाई दे रहा है ना? नो टर्मिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है. ओके मुझे नीचे लिखना पड़ेगा. इनिशिएशन elongation एंड यहीं पे लिख रहा हूं देखो यहाँ पे अब दिखाई देगा टर्मिनेशन और यहाँ याद रखो इनिशिएशन में कौन से फैक्टर कौन से प्रोटीन यूज होंगे तो आईएफ इनिशिएशन फैक्टर ऐसे याद रखना है. इनिशिएशन फैक्टर इलोंगेशन फैक्टर ईएफ और नाउ these are the TF termination factor. याद रहे तो very good. बाकी it's okay. Now what is occur in initiation? Which type of enzyme will be used in initiation? तो मैं हर एक स्टेप को क्लियर बोलता हूं यहाँ पे सुनना perfectly. First of all you have to repeat that line. What is about the connection of transcription and translation?
दैट यहां पे मैं आपको बोलूंगा दिस इज द डीएनए and this is the mRNA. Sometime without ending of transcription, translation will begin. यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, देखो एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन हुआ और दूसरी तरफ ट्रांसलेशन हो गया, यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ चल सकता है। और यहाँ पे ये यूकैरियोटिक सेल है, उसमें ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा because it is nucleus. This is the DNA, देखना है, this is DNA and this is mRNA. Now this mRNA first of all will join with a smaller subunit of ribosome. After then the larger subunit will join with the smaller subunit. Okay, so both are separate process. Transcription, after completing of transcription, the translation will begin. Okay, is it clear? Now, in initiation, what will occur? mRNA which is synthesized in nucleus, mRNA which is synthesized in nucleus, it will move to ribosome small subunit. यहां मैं लिखूंगा तो आपको दिखाई देगा, यहां तक दिखाई देगा। ओके फाइन, देखो दिस mRNA will move to ribosome. First of all, this is the ribosome's smaller subunit. ये आपको याद रखना है। सेकंड, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि mRNA जो है, जो ट्रांसलेशन करेगा, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? 5' to 3'। आप देख सकते हो यहाँ जो डायरेक्शन है वो 5' to 3' होनी चाहिए और यहाँ होगी 5' to 3'। Now this is the smaller subunit and at initial stage, after then the attachment of mRNA with this smaller subunit by initiating factor IF. ये याद रखना, initial factor IF. Then after in a presence of Mg, the larger subunit will join with the smaller subunit. Okay? Now in initiation factor, one enzyme and some source of energy will be used. How the initiation will occur? You can see that real tRNA. Which type of tRNA is in reality? tRNA, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉल जस्ट फटाफट कॉल कट कर देता हूं, अदरवाइज वो रैंक करता रहेगा और आपको इश्यू होगा। ओके फाइन, देखो यहाँ ये जो tRNA ड्रॉ किया है, वो tRNA जो है वो एक्चुअल में ऐसे ये होता है, राइट? और यहाँ पे tRNA यानी आप देख सकते हो ये कि tRNA है। ये tRNA वो ट्रांसफर आरएनए क्यों बोला? क्योंकि वो एमिनो एसिड को ज्वाइन करेगा, यहाँ एमिनो एसिड है उसका चार्जिंग करेगा और ये जो प्रोसेस है उसको चार्जिंग ऑफ tRNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ tRNA। पहले तो मैं आपको बोल देता हूँ, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ ये tRNA जो है वो 1 स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड, तो कई स्टूडेंट डबल बोलते हैं, नहीं ये सिंगल स्टैंड है। देखो ध्यान से, ये आपका 3' एंड है जहां पे एमिनो एसिड ज्वाइन हुआ और 3' ये एक ही चेन है, देखो ये यहाँ फिनिश हो गई और ये 5' एंड बोलेंगे। ओके, तो वहां पे ग्वानिन होगा। ये आपकी बुक में इंफॉर्मेशन नहीं दी है बट आपको ये जानना जरूरी है। और ये क्या बोलेंगे? tRNA, यहाँ पे tRNA का एसाइलेशन बोलेंगे, एसाइलेशन ऑफ tRNA। याद रखो, एसाइलेशन ऑफ tRNA। व्हाट इज एसाइलेशन ऑफ tRNA? Acylation of tRNA, that means attachment of amino acid with the tRNA
Acylation is the process and it is called the charging of tRNA. Now we will tell this tRNA, that means the before charging of tRNA it was single, but now this tRNA is not single, it is attached with amino acid. So we will tell that it is amino acyl tRNA. Amino acyl tRNA. Why it's called a amino acyl tRNA? Because amino acid is attached with tRNA. Amino acid is attached with tRNA by acylation. So amino acyl tRNA. It is initiation. And one of the best point, this amino acid will join with this tRNA's third dash, yani third end, in a presence of ATP. So this is energy consuming process. Energy is required in this process. Is it clear? Okay, fine. So we will tell that it is acylation of tRNA in the presence of ATP. You can say that two different ends are present on tRNA. One end, at the one end, amino acid is present, and at the another end, this is anticodon. This is anticodon loop. Why it's called a anticodon loop? याद रखो, ये anticodon loop क्यों बोला है? Because the mRNA you can see in this figure, which is attached already with ribosome by the use of initiation factor, they possess genetic codon. You can see in this figure, this is genetic codon. There are 3 nucleotides present in this genetic codon, and this genetic codon will join with this anticodon, and that's why the another end of tRNA is called a anticodon loop. It is called a anticodon loop. Is it clear? So it is genetic codon and it is called a anticodon. Another, but these two are extra point. It is called a T psi C loop. यहाँ पे मैं बोलूंगा और उसके अंदर ही लिख देता हूं. यहाँ पे ये लूप को बोलेंगे T psi C लूप, और ये जो यहाँ पे लूप है इसको बोलेंगे DHU लूप. DHU लूप आपको होगा ऐसा कैसा नाम है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको होगा कि यहाँ DHU लूप, T psi C लूप और ये एंटीकोडन लूप क्यों बना? ये क्यों लूप बना? यहाँ पे तो लूप नहीं है, यहाँ पे तो परफेक्ट कोडन ज्वाइन पैरिंग हुआ, यहाँ पे भी पैरिंग हुआ, बट यहाँ पे भी पैरिंग हुआ, राइट? बट यहाँ पे लूप क्यों बना है? उसका रीजन जो आप मैंने बोला अभी कि भाई पैरिंग नहीं हुआ. आपको होगा पैरिंग क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ जो डाई हाइड्रो यूरिडीन यानी यूरिडीन था ना, उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ था. सो प्रॉपर वहां जो सामने अटैचमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए वो नहीं बने थे. वैसे यहाँ पे भी लूप क्यों बना? तो वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड प्रॉपर मैच नहीं हुए, इसलिए वहां पे यहाँ लूप बना है. तो ये लूप का रीजन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, आपको याद रखने के लिए मेरा एक वो मेडिकल का बेनिफिट होगा ऐसा एक वीडियो है, उसमें ये टोटल इंफॉर्मेशन दी है. बट वो होम्योपैथिक का जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट को काफ़ी हार्ड लगा था, उसको मेरे स्टूडेंट ने बोला था कि सर इसका हमें सेंड करना वीडियो, तो मैंने उनको बना के सेंड किया था. ओके, तो उसमें टोटल इंफॉर्मेशन दी है, बट ये अभी आपके काम की नहीं है. अब इनिशिएशन में क्या होगा? लास्ट पॉइंट, इनिशिएशन में क्या होगा? दिस इज
first genetic codon, it is called AUG. This will be confirmed, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट होगा. Ribosome will move to mRNA, and when ribosome will find out the AUG genetic codon, then ribosome will start the process. So it is called a initial codon, AUG. It is initial codon, AUG. And due to AUG, the arrived tRNA, उसको क्या बोल सकते हैं? एमिनो एसाइल tRNA, बिकॉज नाउ एमिनो एसिड आर प्रेजेंट. तो मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करूंगा ऐसे सिंपल. सो दिस अराइव्ड एमिनो एसिड is of the UAC anticodon. This is AUG and this is UAC. So first anticodon कौन सा है? UAC. फर्स्ट AUG है जेनेटिक कोडन. हमारा कोई भी प्रोटीन बने, हमारा कैरेटिन प्रोटीन बने, मेलेनिन प्रोटीन बने, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन हो, बट यहाँ जेनेटिक कोडन और एंटीकोडन फिक्स होगा. एंड द एमिनो एसिड आल्सो विल फिक्स्ड बिकॉज यूएसी है, तो उसके सामने मिथियोनिन ही आएगा. याद रखना है मिथियोनाइन या मिथियोनिन. और ये मैंने बोला वो यूकैरियोटिक सेल का है, बट एक सिंपल सा डिफरेंट है यू एंड प्रोकैरियोटिक में. कौन सा? तो यहाँ याद रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल हो तो वहां फॉर्माइल मिथियोनिन आएगा, फॉर्माइल मिथियोनिन आएगा. उसको शॉर्ट में बोलेंगे एफमैट. क्या बोलते हैं? एफमैट. वो शॉर्ट में बोलते हैं एफमैट. फॉर्माइल मिथियोनिन आएगा. दिस इज द इनिशिएशन. नाउ what will in elongation? Now you have to यानी सेल. कोई आप ट्रांसलेशन नहीं करने वाले, करते हो एक्चुअल में आप ही करते हो, राइट? बट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन में देख ले, हॉटस्पॉट विल टर्न ऑफ, स्क्रीन ब्राइटनेस विल बी रिड्यूस टू डिफॉल्ट लेवल एंड रिटर्न टू नॉर्मल एक्सिस्टिंग. यहाँ पे ये टर्न ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल हीट हो गया है थोड़ा. तो वेट फॉर 20 सेकेंड्स. यहाँ टर्न ऑफ हो जाएगा तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी फिर से, यानी टोटली नया नहीं बोलूँगा, बट इनिशिएशन ये यूट्यूब का वीडियो जो है मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. जस्ट वेट. यहाँ पे नोटिफिकेशन 10 सेकेंड तक रहेगा. 10, 9, 8, 7, 6. लकीली यहाँ पे बंद ना हो जाए मोबाइल तो अच्छा है. इतना रिफर कर लो तब तक. चलो आप ओके देयर विल नॉट बी इश्यू. चलो अब क्लियर है. टाइम हो गया, निकल गया. जो स्ट्रगल का टाइम था वो निकल गया. ओके चलो अब देखते हैं स्टार्ट. भाई विधि समझ में आ रहा है? प्रियांशु, मिली और कौन है जूम पे लाइव में? निशांत, रेडमी यानी कौन? ओके चलो जो भी हो. अब यहाँ पे आप देखना है, देख सकते हो कि अब एलोंगेशन में क्या होगा. इन एलोंगेशन दिस इज द सेकंड जेनेटिक कोडन, दिस इज द सेकंड जेनेटिक कोडन, एंड इन अ प्रेजेंस ऑफ दिस सेकंड जेनेटिक कोडन, इन अ प्रेजेंस ऑफ दिस सेकंड जेनेटिक कोडन, अगर यहाँ पे कोई भी CCG जेनेटिक कोडन है तो ऐसे या साइटोप्लाज्म में कई सारे अमीनो एसिड होंगे जो tRNA के साथ अटैच्ड होंगे, यानी अमीनो एसाइल tRNA बनाया होगा. ऐसा यहाँ पे एक अमीनो एसाइल tRNA यहाँ आया जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री यानी एंटीकोडन क्या होगा? GGC. और CCG है. अब ये फिक्स नहीं होगा. हाँ ये फर्स्ट ये फिक्स होता है कि भाई AUG आएगा फर्स्ट, बट उसके बाद कोई फिक्स नहीं होता है. तो यहाँ कोई भी हो सकता है, बट इसके हिसाब से ये होगा.
यानी जेनेटिक कोडॉन के हिसाब से एंटी कोडॉन होगी, और एंटी कोडॉन होगा उसके हिसाब से यहाँ एमाइनो एसिड होगा. सपोज द serine is present at the another end. Now this is the arrival of amino acyl tRNA. This is the first step. So elongation में क्या बोलेंगे, या जूम का वीडियो ऑफ हो जाए तो फिर से ज्वाइन होना है 5-10 मिनट में, यानी elongation में क्या बोलेंगे, on the base of second genetic codon the tRNA with amino acid and with complementary nucleotide of this genetic codon will attach at this site. आपकी बुक में गलत है, बट एक इंफॉर्मेशन गलत है, बट याद रखना है कि राइबोसोम पे ट्रांसलेशन की कितनी साइट है पता है, 2 साइट. बट रियल में आप देखो इंटरनेट पे प्रदीप बुक में एररलेस में तो एक्चुअल में 3 साइट है. कैसे मैं अभी समझा रहा हूं, बट पहले ये देख लो कि यहाँ फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, अराइवल ऑफ एमाइनो एसिड. सेकंड स्टेप is synthesis of peptide bond. So peptide bond is synthesized between these 2 amino acid. Now the former amino acid and the tRNA will be split. The joining will be split. यानी यहाँ tRNA से ये amino acid separate हो गया. Okay. Now fourth and main step, ये 3 स्टेप रिपीट करो. पहला सेकंड जेनेटिक कोडन पे एमाइनो एसिड tRNA आया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ. थर्ड स्टेप tRNA एंड अमीनो एसिड विल बी ब्रोकन डाउन. फोर्थ स्टेप, दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप, राइबोसोम विल मूव. ये थर्ड जेनेटिक कोडन है, ये फोर्थ है, ऐसे जेनेटिक कोडन कंटिन्यूस है. राइबोसोम विल मूव, यहां पे भी सेकंड था, यह जेनेटिक कोडन था, बट यहां से स्टार्ट हुआ. राइबोसोम विल मूव टू सिंगल जेनेटिक कोडन, यानी एक जेनेटिक कोडन यहां राइबोसोम मूव होगा. हमें ये राइबोसोम रफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि राइबोसोम डबल हुआ, ऐसा नहीं बोला. मैंने क्या बोला, मैं यहां गया तो रौनक सर 2 हो गए, ऐसा थोड़ी है. मैं यहां गया तो मैं ही हूं, बट ये चेंज हो गया. तो राइबोसोम यहाँ पे एक जेनेटिक कोडन आगे गए. अब यहाँ क्या होगा, तो ये तीनों साइड की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा. पहले यहाँ ये साइड की इंफॉर्मेशन दूंगा. राइबोसोम पे ये जो साइड है, ये साइड का नाम क्या है, ई. क्यों ई रखा है, ई फॉर एग्जिट. याद रखो, ई फॉर एग्जिट साइड. क्योंकि यहाँ एग्जिट नाम क्यों रखा, क्योंकि यहाँ जो tRNA है वो यहाँ सेपरेट हो जाएगा. सो इट इज कॉल्ड एग्जिट. नाउ it is the site which is called a P site. Why it is called a P site? Because it is called a peptidyl site. याद रखो, क्यों peptidyl site? P for peptidyl site. Why peptidyl site? Because dipeptide bond are present at this tRNA. So it is called a peptidyl site. यानी यहाँ ये साइड पे जो tRNA है वहाँ दोनों एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन है. ओके देखो निशान, तेरे फादर का कॉल था, बट मुझे जरा भी अभी टाइम नहीं है. और रियली 7 o'clock हम शाम को फ्री होते हैं. आप देखना 6 o'clock भी मैं लाइव होगा, देखना आप कि ट्राई करना. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock. अगर मैं ओनली जूम पे स्टडी करवा रहा हूँ तो उस टाइम पे लाइव नहीं होगा. ओके तो मैं कॉल करूंगा जैसे फ्री होगे. ओके अब यहाँ ई साइड है, ये कौन सी है, पी साइड. याद रखो ये पी साइड, पी फॉर पेप्टिडाइल साइड एंड ई फॉर एग्जिट साइड. याद रखो ई फॉर एग्जिट साइड. क्लियर. नाउ व्हाट विल अकर, अगेन आपको फिर से 2 मिनट में जूम
एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगा, स्टार्ट फिर से करना है, ज्वाइन होना है अगेन। यहाँ पे आप याद रखो कि थर्ड एंड लास्ट साइड, इसको हम क्या और क्यों बोलेंगे उसका रीजन समझा रहा हूं पहले। तो यहाँ थर्ड जेनेटिक कोडन, ये पहला तो फिक्स है, दूसरा फिक्स नहीं होगा, थर्ड भी फिक्स नहीं होगा। सपोज ले लो CAA, तो ऑन द बेस ऑफ दिस जेनेटिक कोडन यहाँ ये एंटी कोडन आएगा, यानी GUU, ये एंटी कोडन आएगा। और ये एंटी कोडन ये है, उसके ऊपर सपोज ले लो कि ल्यूसीन एमिनो एसिड है, तो यहाँ नया एमिनो एसिड आया और इसको हम बोलेंगे, याद रखो, A site. Why it is called A site? Why it is called A site? Because यहाँ नया एमिनो एसिड आया है, एमिनो एसिड आया, सो एमिनो एसाइल बाइंडिंग साइट, एमिनो एसाइल बाइंडिंग साइट, ये आपको याद रखना है। ओके, तो E फॉर exit, P for peptidyl, right, and A for amino acyl binding site। तो ये 3 साइट आपको याद रखना है, क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ अब क्या होगा, तो ये रिपीट करो, अलोंगेशन में रिपीट करना है। क्या होगा रिपीट में कि भाई यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये tRNA यहाँ सेपरेट हो जाएगा, देन राइबोसोम विल मूव, बराबर, राइबोसोम विल मूव, और ये स्टेप फिर से होंगे। इन शॉर्ट ऐसे एलोंगेशन होगा, बट आफ्टर देन टर्मिनेशन, यानी व्हेन द जेनेटिक कोडन इज UAA, UAG and UGA, there is no anticodon of this and genetic codon, there is no anticodon of this genetic codon, so it is called a stop codon or nonsense codon. It is called a stop codon or nonsense codon. Is it clear? So it is called a stop codon and nonsense because this genetic codon are not sensing. Okay, so this यहाँ जेनेटिक कोडन की वजह से ये एंटी कोडन आया, बट ये जेनेटिक कोडन से कोई एंटी कोडन नहीं आया, सो इट इज एंड ऑफ ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? अब पोस्ट ट्रांसलेशन जो आपकी बुक में नहीं है, यानी क्या, ये सपोज ऐसे 50 एमिनो एसिड ज्वाइन होके पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, बट हमारे अलग अलग प्रोटीन में सीक्वेंस अलग है, और लास्ट में पोस्ट ट्रांसलेशन में शायद यहां से फॉर्माइल समूह, फॉर्माइल जो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्माइल मिथियोनिन टोटली रिमूव हो जाएगा। अगर यूकैरियोटिक सेल हो तो मिथियोनिन रिमूव हो जाएगा। इट इज पोस्ट ट्रांसलेशन। ओके, अब ये 3 जेनेटिक कोडन क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अभी ये लेक्चर परफेक्ट रिपीट कर लो और उसके बाद शॉर्ट नोट मुझे सेंड करो और कल के टेस्ट की प्रिपरेशन करो, और क्या अपडेट लाना है वो मैसेज करता हूँ। आज का मैसेज इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, वो आपको देखना है। ओके, अब गुड बाय, टाटा, सी यू। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ वीडियो, 2 मिनट में आ जाएगा, और मैं मैसेज भी अपडेट करूंगा आधे घंटे में कि कैसे प्रिपरेशन करनी है हमें, बराबर, कल के टेस्ट की, तो मैं मैसेज करूंगा। ओके प्रियांशु, मिलते हैं।